میں آپ سب کی سلامتی ہو. آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر نئی سیریل سٹارٹ کی ہے جی یعنی خدا کی خدائی کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں, اور یہ الوہیت کی جو ایجوکیشن تعلیم ہے اس کو ہم لے رہے ہیں, اور بڑی خوبصورت تعلیم ہے. اور خدا کے تعلق سے خدا کا سارا علم جو ہے, خدا کی ساری الوہیت یعنی خدا ہے کیا چیز, اس کے تعلق سے ہم خدا کے کلام میں سے سیکھ رہے ہیں. تو پلیز دھیان سے اس پر غور کیجیے اور نوش کیجیے اور اس کلام کو, اس تعلیم کو لیجیے, کیونکہ یہ نہایت عمیق تعلیم ہے, گہرے بھید چھپے ہوئے ہیں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے یہاں پر سیریل سٹارٹ کی ہوئی ہے جی الوہیت یعنی خدا کی جو قدرت ہے, خدا کی خدائی کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں. اور اس کا آج کا جو سرمن ہوگا آلمائٹی گاڈ یعنی خدائے قادر, یہ آج کا سرمن ہوگا کہ خدا جو ہے وہ خدائے قادر ہے, آلمائٹی گاڈ ہے. آمین. تو آئیے میرے ساتھ حوالہ نکالیے خداوند کے کلام میں سے پیدائش 17واں باب پر 61 آئے. اور جب ابراہم 99 برس کا ہوا تب خداوند ابراہم کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں, تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو. ایک اور ریفرنس میرے ساتھ اس کے ساتھ نکالیے, رومیو 4 باب اور اس کی 17ویں آیت. رومیو 4 باب اور اس کی 17ویں آیت. چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت ساری قوموں کا باپ بنایا اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا, اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے گویا وہ ہیں. وہ نا امیدی کی حالت میں امید کے ساتھ ایمان لایا تاکہ اس قول کے مطابق کہ تیری نسل ایسی ہوگی کہ وہ بہت ساری قوموں کا باپ ہو. اور وہ جو تقریباً 100 برس کا تھا باوجود اپنے مردہ سے بدن اور سایہ کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے ایمان میں ضعیف نہ ہوا, اور نہ بے ایمان ہو کر خداوند کے وعدے میں شک کیا, بلکہ ایمان میں مضبوط ہو کر خدا کی تمجید کی. اور اس کو کامل اعتقاد ہوا کہ جو کچھ اس نے وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے میں قادر ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. بولے آمین. آئیے روح القدس کو ہم زوردار تعلیم کے ساتھ کریں گے. شکریہ صاحب بیٹھیں. خدائے قادر کے تعلق سے, آلمائٹی گاڈ کے تعلق سے جو تعلیم خدا کے کلام میں سے دینے کو ہوں, خداوند کے کلام کے اندر جس خدا کی ہم عبادت کر رہے ہیں, دنیا کے لوگوں نے اس خدا کی ایڈیٹی کو, اس خدا کی الوہیت کو, خدا کو جان تو لیا مگر اس کو لکھا کیڑے مکوڑوں کی شکل میں بدل دیا. یعنی دنیا کی چیزوں میں خدا کو ڈھونڈنے لگے اور سانپوں کی ورشپ کرنے لگے, اور جتنے جانور ہیں ان کی ورشپ کرنے لگے انسان. مگر ایک ایماندار بلیور جب خدا کو ڈھونڈتا ہے تو ایک ریولیشن کے ذریعے سے, ایک ایماندار جب اس پر خدا کی خدائی ظاہر ہوگی تو مکاشفے کے ذریعے سے یا تو وہ ایمان لائے گا خدا کی ذات پر کہ خدا ہے, تو پھر وہ خدا کے کاموں کو جان جائے گا, الوہیت کو جان جائے گا, یعنی خدا کو جان جائے گا. لہذا ایک ایماندار بلیور جو خدا کو جاننا چاہتا ہے وہ ایمان لاتا ہے اور مکاشفے کے ذریعے سے خدا کو جان لیتا ہے. مگر دنیا کے لوگ دنیا کی چیزوں میں سے خدا کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آج جو سرمن ہوگا وہ آلمائٹی گاڈ کے تعلق سے, یعنی خدا کے تعلق سے ہم سیکھیں گے کہ خدا آلمائٹی گاڈ ہے, اور اسے گریک لینگویج کے اندر الشدائی کہتے ہیں, یعنی الشدائی خدا. اور الشدائی جو ہے اس کا مطلب ہے آلمائٹی گاڈ, خدائے قادر, اس کا مطلب ہے قوت والا, قدرت والا, یعنی اومنی پروٹیکٹ پاور, یعنی فل نس پاور رکھنے والا خدا, یعنی ایسا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. یعنی ہمارا خدا ایک ایسا عظیم خدا ہے. دنیا کی ایڈیٹی, دنیا کے جو معبود ہیں, اگر ان پر آپ غور کریں, مگر جب ہم اپنے خدا پر غور کریں گے تو وہ ان سے زیادہ اتم خدا ہے. ہاللیلویا. وہ تو اینٹ پتھر کے خدا ہے, کچھ قدرت نہیں رکھتے,
کوئی الوہیت ان کے اندر نہیں، مگر ہمارا خدا جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ عظیم خدا ہے. ہاللیلویا. کائنات کا بنانے والا اور ملٹی گاڈ یعنی قادر مطلق خدا، قدرت رکھنے والا خدا، یعنی پاور رکھتا ہے، ہر قسم کی قدرت اس کے اندر بھری ہوئی ہے. آمین. لہذا آلمائٹی گاڈ کا یہ بھید اگر کسی پر کھلا ہے تو وہ ابراہیم پر کھلا ہے. آمین. خدا نے اگر اپنے یعنی آلمائٹی کے اس ویژن کو جب کھولا تو ابراہیم پر کھولا. حالانکہ خداوند کے کلام میں لکھے ابراہیم سے پہلے بھی لکھا ہے نوح جو تھا خدا کے ساتھ چل رہا تھا، پھر لکھا ہے متسل خدا کے ساتھ چل رہا تھا، مگر نیشن کی جو برکت تھی، اولاد کی جو برکت تھی، کیونکہ لکھا ہے نیشن فادر آف نیشن اگر کسی کو کہا گیا تو وہ ابراہیم کو کہا گیا، قوموں کا باپ، قوموں کی برکت دینے کے لیے آلمائٹی گاڈ کا یہ بھید کھلنا ضروری تھا. اور ابراہیم پر یہ بھید کھلا کہ خدا کیا ہے؟ آلمائٹی گاڈ ہے، یعنی خدا قادر. وہ کیا کرتا ہے؟ لکھا ہے خدا نے وعدہ کیا کہ میں تجھ سے قوموں کے جتھے پیدا کروں گا، یعنی نسلیں تجھے دوں گا، تیری اولاد کو برکت دوں گا، تجھے بڑھاؤں گا. یہ برکت خدا نے دی ہے. اور آپ دیکھیں خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے آلمائٹی گاڈ کے تعلق سے لکھا ہے کہ جب نوح سے جو 3 بیٹے تھے، لکھا ہے کشتی جب پانیوں پر پانی کا دور گزرا تو لکھا ہے نوح کے جو 3 بیٹے تھے، سم، ہم اور ایک اور بیٹا تھا. اور خداوند کے کلام میں یہ تینوں بیٹے جو تھے، یہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے ان میں سے ہم جو تھا اسے خدا نے لعنت دے دی. یعنی ہم کی نسل کو خدا نے لعنت دی کیونکہ اس نے باپ کو بڑھانا، اسے ڈھانکا نہیں. تو خدا کے کلام لکھا ہے خدا نے اس کی نسلوں کو لعنت میں بدل دیا. یعنی اس کی ہام کی جو اولاد تھی، اس سے ہام کی اولاد میں سے کوش پیدا ہوا، اور لکھا کوش سے نمرود پیدا ہوا. نمرود ایک ایسا سورما تھا جو شیطانیت اس کے اندر بسی ہوئی تھی. نمرود جو تھا دنیا کے اندر ایک ایسا شخص گزرا، لکھا ہام کی اولاد میں سے جس میں سے شیطان ہو کر کام کر رہا تھا، اور اس نے ایک ایسا جھوٹا مذہب دنیا کے اندر بنا ڈالا. یعنی یہ سنار کا ملک تھا جسے بابل کا شہر کہتے ہیں، اور لکھا اس نے بابل کا برج بھی بنایا، دیوتا کا دروازہ. خدا تک پہنچنا چاہتا تھا، اپنے آپ کو آلمائٹی کہتا تھا، اور اس نے جھوٹا مذہب بنایا کہ نیچر کی پرستش کی جائے. خدا کی الوہیت کچھ نہیں ہے، نیچر ہی سب کچھ ہے. یعنی نیچر کے اندر سورج کی پوجا، اس نے سورج کو کہا یہ دیوتا ہے، اس کی ورشپ کرو. اور اگر زیادہ گرمی پڑتی تو کہتے ہیں ہمارا دیوتا ناراض ہو گیا ہے. یعنی وہ الوہیت کو، خدا کو، خدا کی خدائی کو وہ سورج میں سے ڈھونڈنے لگے. کہنے لگا یہ نمرود جو ہے وہ کہتا ہے سورج کی ورشپ کرنی ہے، اور پھر چاند کی بھی وہ ورشپ کراتا. اور اس نے وہاں پر جھوٹا مذہب، یعنی وہ دھرتی ماتا کی پرستش کرتا، آگ کی پرستش کرتا، دنیا سے کروانے لگا. شیطانیت اس کے اندر بسی ہوئی تھی. یعنی آپ دیکھیں شیطان کی ایک شکل ہی نمرود کے اندر تھی، اور لکھے ہام کی نسل میں سے تھا، اور لکھے آگ کی پرستش کرنے لگا، اور لکھے دنیا کو آگ کی پرستش کروانے لگا. پھر لکھے درختوں کی پرستش، دنیا کی چیزوں کی پرستش کروانے لگا. سورج کی نیچر کے اندر جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں ان کی وہ ورشپ کروانے لگا دنیا سے. کہنے لگا میں آلمائٹی ہوں، خدا قادر میں ہوں، میری ورشپ کرو. اپنے آپ کو دیوتا کہتا. اس کا بیٹا جو تھا اس کی بیوی کو دیوی کہا جاتا تھا، اور وہ اپنی ورشپ دنیا سے کروانے لگا. لیکن شیطانیت اس کے اندر بسی ہوئی تھی، اور اپنے آپ کو آلمائٹی کہتا میں خدا قادر ہوں. مگر خداوند کے کلام لکھا پھر خدا نے سم کی نسل میں سے لکھا ہے ابراہیم کو اس کے سامنے کھڑا کر دیا. ہاللیلویا. تاکہ اپنی قدرت کے کاموں کو اس پر ظاہر کرے. اس کی ساری جو قدرت ہے وہ اپنے آپ کو دکھاتا تھا، اس کو نستنابود کر. لکھا ہے کہ اس نے نمرود نے بابل کا برج بنایا تاکہ خدا کی خدائی کو چیلنج کر سکے. خدا نے لکھا ہے ابراہیم کے ذریعے سے، لکھا ہے اپنی قدرت کے ذریعے سے، الوہیت کے ذریعے سے، اڈیٹی کے ذریعے سے، لکھا ہے اس کی تمام بابل کے برج کو چکنا چور کر دیا. ہاللیلویا. کیونکہ خدا نے کہا میں خدا قادر ہوں.
इब्राहिम को उसके सामने खड़ा कर दिया और अपनी कुदरत को उस पर जाहिर किया, नमरूद को निस्तानाबूद करवा कर रख दिया। और लेकिन इब्राहिम के साथ खुदा ने ऐहद बांधा, चुना उसे कहा कि तू मेरे हजूर चल। इब्राहिम जब 99 वर्ष का था, 99 वर्ष का, लेकिन खुदा उस पर जाहिर हुआ। आमीन। उस पर खुदा एक कादर के तौर पर जाहिर हुआ, हालांकि पहले भी रोया में उससे मिलता था। उसे कहा, उसे कॉल की, बुलाया कि मेरे हजूर चल, मैं तुझे कौमों पर, तेरे जरिया से कौमों के जत्थे पैदा होंगे, नस्लें पैदा होंगी। और खुदा ने उसके साथ वादा किया, उसे अपनी हजूरी में आने का कहा। और खुदावंद के कलाम में लिखा है, पौलुस रसूल इस भेद को खोलता है। इब्रानियों के खत के अंदर इब्राहिम के तल्लुक से पौलुस रसूल क्या कहता है, सुनिए। पौलुस रसूल कहता है, ऐसा शख्स इब्राहिम जो था, लिखा है, जिसको कौमों का बाप कहा गया, नेशन ऑफ फादर कहा गया, लिखा है उसके साथ वादे किए गए, मगर लिखा है वो मुर्दा सा शख्स था। आमीन। उसको कहा गया वो इब्राहिम, मगर खुदा ने उसके साथ वादे किए नस्लों के साथ, मगर है मुर्दा। मुर्दा वो होता है जिसके अंदर रूह ना हो, स्पिरिट ना हो, मगर वो तो जिंदा था। मगर उसको क्या कहा गया कि इब्राहिम को कहा गया मुर्दा सा शख्स, और सारा को भी कहा गया वो मुर्दगी, यानी मुर्दा थी सारा। उसका रहम बंद था, रहम बंद के बंद से भी आगे ये उसकी कंडीशन, उसकी पोजीशन थी कि वो क्या थी, मुर्दा सी थी। यानी 99 ईयर का बुढ़ा, 100 साल का बुढ़ा, लिखा खुदा ने उसके साथ वादा किया, मैं तेरी नेशन को बरकत दूंगा, तुझसे कौमों के जत्थे पैदा होंगे, मगर मुर्दा सा था, औलाद नहीं हो सकती। ऐसी कंडीशन के अंदर सारा भी थी और इब्राहिम भी, कि औलाद ही नहीं हो सकती। अब देखिए इस लेवल के अंदर थे कि मुर्दा से थे, यानी औलाद नहीं हो सकती, मगर खुदा ने इब्राहिम के साथ वादा किया। और लिखा है, पौलुस रसूल इस भेद को इब्रानियों के खत के अंदर लिखा है, खोलता है कि खुदा ने उसके साथ वादा किया था। एक मुर्दा सा शख्स लिया जो कुछ भी नहीं था, और खुदा की खुदाई के तरफ से वो क्या कहता है कि खुदा हर चीज को ऐसे बना लेता है गोया वो है, यानी होता नहीं कोई भी, मगर खुदा उसे ऐसे बनाता है जैसे है। जैसे आसमान जमीन को खुदा ने ऐसे ही बना दिया, उसने कहा आसमान हो जा, आजा, आसमान आ गया, यानी है नहीं था, हो गया। इसी तरह इब्राहिम भी मुर्दा सा शख्स था, कुछ भी नहीं था, उसकी हालत डेड कंडीशन थी, मगर खुदा ने उसको ऐसे बनाया जैसे वो है। हालेलुया। आइए इस वादे के लिए जोर देता है। लिहाजा वो मुर्दा सा था, कुछ भी नहीं था, डेड कंडीशन थी। खुदा ने कहा मैं खुदाए कादर हूं, मैं जिस्म के पार्ट्स को नया बनाने वाला हूं, मुर्दों को जिंदा करने वाला हूं, मुर्दों के अंदर जिंदगी का दम फूंकने वाला हूं, जिंदगियों को नया बना डालता हूं। लिहाजा है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं होता, मगर खुदा ऐसे चीजों को बुला लेता है जैसे वो पहले ऑलरेडी से है, यानी है नहीं, जैसे मैं और आप कुछ नहीं थे, मगर खुदा ने अपनी आसमान की बात से बुला लिया। हालेलुया। है नहीं थे मगर उसने अब है। आमीन। है नहीं मगर असल से खुदा ने अपने प्लान में रखा, हमें ऐसे बुला लिया। हम ऐसे नहीं बैठे यहां पर, हम नहीं थे, कुछ नहीं थे, मगर हमें लिखा उसने अजल से बुला रखा है। हालेलुया। हमें ऐसे बुला लेता है नहीं है, मगर क्योंकि अजल से है वो बुलाता है और वो हम सब हाजिर हो जाते हैं। इसी तरह इब्राहिम डेड था, मुर्दा था, उसको ऐसे बुला लिया गोया वो पहले से है। हालेलुया। उससे कहा कि मैं तुझसे नस्लों को, तेरी नस्ल को बरकत दूंगा, गिन सितारों को, रेत के जर्रों को अगर ये गिन ले सकता है, तेरी औलाद भी ऐसी होगी। हालेलुया। लिहाजा खुदा ने अपनी कुदरत को उस पर जाहिर किया, कहा कि उस पर ये जाहिर हुआ, उसने ये विजन लिया कि खुदा ऑलमाइटी गॉड है। क्या है खुदा? खुदा एक कादर, वो छातियों को बरकत देता है। हालेलुया। खुदा बरकत देता है, नस्लों की बरकत देता है, ये खुदा की ब्लेसिंग है। और ये भेद खुदावंद के कलाम में लिखा है, इसलिए तो वो लिखा मुर्दा सा था, इब्राहिम डेड कंडीशन थी, कुछ भी नहीं था, मगर खुदा ने उसके जरिए से लिखा सारा का रहम भी लिखा डेड था, औलाद नहीं हो सकती थी, मगर लिखा है उससे इसहाक पैदा हुआ। हालेलुया। इसहाक को लिखा कि खुदा ने जब मांगा तो
इब्राहिम जानता था कि अगर मैं, इसलिए तो इब्राहिम पर यह भेद खुल गया कि खुदा मुर्दों को भी जिंदा करने में कादिर है। हालेलुया। खुदा मुर्दों को भी बोलिए जिंदा करने में कादिर। इसलिए लिखा है कि वो अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए चला गया। उन्हें पता सी मैं कुर्बान कर भी दूंगा, फिर भी यीशु खुदा क्या कर देगा, अपनी अलूहियत से वो कादिर मुतलक है। वो मुर्दों को जलाने वाला खुदा है, जिंदा करने वाला खुदा है। अगर इसहाक को मैं कुर्बान भी कर दूंगा, फिर उसे जिंदा वापस ले आऊंगा। हालेलुया। आइए खुदा के जलाल की जोर है। लिहाजा इसी मौत से वो इसहाक को जिंदा वापस लेकर आया है, वरना वही कुर्बानी हो जाती। उसका ईमान था कि वो मुर्दों को जलाने में कादिर मुतलक है। हालेलुया। लिहाजा इसहाक को वो अपने बेटे को वापस जिंदा लेकर, वो जानता था कि मैं भी डेड था, मैं भी कुछ नहीं था, मुझे खुदा ने अपना जोर दिया, मुझसे औलाद के वादे कर रखे हैं, इसहाक पैदा हो गया है। फिर वो जानता था कि इसहाक को भी मैं जिंदा लाऊंगा, और जिंदा ले आया। और खुदावंद ने फिर लिखा यकूब, उसके जैसे यकूब पैदा हुआ। और लिखा इसहाक यकूब को बरकत नहीं देना चाहता था, मगर बाइबल में लिखा है कि जब इसहाक ने यकूब को बरकत दे दी और फिर कहा कि तुझे खुदाए कादिर की बरकत मिले। हालेलुया। ये विजन लीजिए, खुदाए कादिर है क्या। खुदाए कादिर बोलकर दुआ कीजिए, खुदाए कादिर को समझिए। वो जो कुदरत रखने वाला खुदा है, पावर रखने वाला खुदा है, मुर्दों को जिंदा करता है, डेड पार्ट्स को, जिस्म के मुर्दा हिस्सों को जिंदा कर देता है। हालेलुया। वो मुर्दों को जिंदा कर देता है। इब्राहिम मुर्दा था, उसे जिंदा कर दिया गया। हालेलुया। उसके पार्ट्स को जिंदा कर दिया गया, वो जिंदगी के अंदर आ गया। लिहाजा खुदावंद के कलाम लिखा है, ये फिर लिखा है यकूब पर यह भेद खुला है। यकूब पर यह भेद खुला। यकूब लिखा है कि जब वो खुदा के साथ वहां से अपने घर से निकला अपने मामू की तरफ, तो लिखा है कि वहां पर रास्ते में खुदा ने उससे कहा, उसने जब कुश्ती लड़ी तो खुदा ने उससे कहा कि तू अब यकूब नहीं बल्कि इस्राएल कहलाएगा। और लिखा है कि जब 20 साल के बाद वो अपनी बच्चों को लेकर वापस आ रहा था, उस पर भी खुदा कादिर के तौर पर जाहिर हुआ। उस पर भी यह भेद खुल गया कि खुदा कादिर है। जब वापस आ रहा था, खुदा ने कहा वापस बैतेल में जा, और वहां पर जाकर खुदा ने उससे दोबारा कहा, उससे कहा तू दूसरी दफा कहा कि तू यकूब है, अब यकूब नहीं रहेगा बल्कि तू इस्राएल कहलाएगा। मैंने तुझे खुदाए कादिर की बरकत दे दी, अपनी ब्लेसिंग देनी है। आमीन। तेरी नस्लों को बढ़ाऊंगा, बरकत दूंगा। और फिर लिखा जब यकूब ने अपने बेटे यूसुफ को बरकत दी, तो फिर उसने क्या बरकत दी, उसने कहा खुदाए कादिर की बरकत तुझे हो। और उसने यूसुफ से कहा, यकूब ने उससे कहा मेरी बरकत मेरे बाप दादा से भी बढ़कर है। हालेलुया। उसने कहा खुदाए कादिर की जो कुदरत है, ब्लेसिंग है, बरकत है, उसने कहा जो मेरी बरकत है वो मेरे बाप दादा यानी बाप इसहाक से ज्यादा और इब्राहिम से भी ज्यादा बरकतें हैं। हालेलुया। 20 साल के अंदर खुदा ने, उसके पास कुछ नहीं था, लाठी खाली लेकर लिखा है वहां अपने मामू के पास गया है, मगर लिखा है जब वापस आया तो गौल की गौल लेकर आया। हालेलुया। ये कादिर मुतलक की ब्लेसिंग, उसने कहा मेरी बरकतें जो है, यकूब कहता है, उस पर जब भेद खुले, उसने जो ब्लेसिंग हासिल की, उसने कहा मेरी बरकत जो है वो मेरे बाप दादा की बरकत से भी ज्यादा है। हालेलुया। उसने फिर यूसुफ को बरकत दी, उसने यूसुफ को बरकत दी। उसने कहा ओस जो है आसमानों की तुझ पर पड़ती रहे, जैसे पहाड़ों पर बर्फ पड़ती है वैसे ही तुझ पर बर्फ पड़े, यानी इतनी बरकतें तेरी जिंदगी के अंदर हों। हालेलुया। और कहा तुझे नस्लों की बरकत देता हूं, औलाद की बरकत देता हूं, ब्लेसिंग की बरकत देता हूं। तो खुदा ने लिखा यूसुफ पर भी ये भेद खोला। लिहाजा खुदा जो है इब्राहिम पर खुदाए कादिर के तौर पर वहां पर जाहिर हुआ, फिर यकूब की जिंदगी पे ऊपर, फिर खुदावंद के कलाम में यूसुफ की जिंदगी के अंदर। इसी तरह खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है खुदाए कादिर उसके हजूर चलना है, वो मुर्दों को जिंदा करने में कादिर मुतलक है। ये भेद इब्राहिम पर खुला, उन लोगों पर भी खुला। और नए नामा के अंदर खुदाए कादिर के तौर पर जब भेद खुला तो वो क्राइस्ट के ऊपर खुला। हालेलुया। खुदा के बेटे के ऊपर, यीशु मसीह के ऊपर खुदा की कुदरत, अलूहियत की सारी मामूली जो है वो क्राइस्ट की जिंदगी पे ऊपर आ गई। हालेलुया। यीशु मसीह के ताल्लुक से भी क्या कहा गया, यशायाह क्या कहता है, सुनिए गौर से। यशायाह कहता है वो अजीब मशीर, बोलिए खुदाए कादिर है। हालेलुया। आइए उस कादिर के लिए जोर का तरीका है, यानी ये ब्लेसिंग, ये बरकत क्राइस्ट की जिंदगी के ऊपर भी था,
blessing. खुदावंद के कलाम में यशायाह इस भेद को क्या खोलता है, खोल कर क्या कहता है, वो अजीब मशीर, और बोलिए खुदाए कादिर, ऑलमाइटी गॉड, ये क्राइस्ट के अंदर अलूहियत की सारी मामूरी क्राइस्ट के अंदर सुकूनत करती है। यानी क्राइस्ट के अंदर जो खुदा है वो सारा कुछ मसीह के अंदर देखा जा सकता है। अगर खुदा को देखना है, खुदा की खुदाई को जानना, अलूहियत को जानना है, तो मसीह को जान जाइए, और जो मसीह को जान जाएंगे वो खुदा को जान जाएंगे। हालेलुया। लिहाजा खुदा के कलाम लिखा है, यीशु मसीह जब दुनिया के अंदर आया, उसने मुर्दा जिंदा करना शुरू किया। जाए कि बेवा की जो औरत थी, उसके बेटे को कहा उठ, और लिखा वो उठ खड़ा हुआ। हालेलुया। वो खुदा कादिर, मुर्दों को जिंदा करने वाला क्राइस्ट के अंदर अलूहियत थी, वो मुर्दों को जिंदा करने लगा। और लिखा एक बेटी को कहा, एक बेटी बीमार थी, उसे कहा उठ बेटी, और लिखा वो उठ कर बैठ गई। हालेलुया। लिखा लाजर को कहा, क्या कहा, कब्र से बाहर आ जा, और वो क्या हो गया। ये अलूहियत है, ये खुदा कादिर की बरकत है, ब्लेसिंग है, मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत है। लिहाजा ये क्राइस्ट के ऊपर भी जाहिर हुआ। लिहाजा अगर क्राइस्ट ने थोड़े से मुर्दे जिंदा किए, थोड़े से मुर्दा जिंदा किए, क्योंकि अगर सुनिए गौर से जुमला सुनिए जो मैं कहने लगा हूं, अगर क्राइस्ट मुर्दे जिंदा ना करता तो वो खुदा ही ना होता। हालेलुया। खुदा मुर्दे जिंदा कर सकता है, कोई और अदिति, दुनिया की कोई ऐसी खुदाई, ऐसा मबूद दुनिया के अंदर नहीं जो मुर्दे जिंदा कर सके। एक ही अदिति, एक ही खुदा है, वो जिंदा खुदा जिसकी मैं और आप प्रशंसा कर रहे हैं। जो खुदा कादिर है वही मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदा है। अगर डेड पार्ट्स है जिस्म के हिस्से, अगर कोई मुर्दा है तो उनको भी जिंदा करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। क्राइस्ट ने ऐसा किया कि मुर्दों को जिंदा किया, और अगर मुर्दे जिंदा ना होते तो फिर इसका मतलब है क्राइस्ट मुर्दे ना जिंदा करता तो फिर वही खुदा वो कहलाता ना, खुदा की खुदाई उसके अंदर ना होती। लिहाजा इसलिए मुर्दे जिंदा किए गए। लिहाजा इस सीरियल में हम खुदा की खुदाई को और फिर क्राइस्ट को देखेंगे, और फिर कलीसिया के अंदर उसका असर हम देखेंगे। ये सारी सीरियल के अंदर ये टॉपिक चलेगा, थीम हमारा है खुदा की अलूहियत को, फिर क्राइस्ट की अलूहियत को, और उसके बाद कलीसिया की अलूहियत के अंदर खुदा जो असर करता है, कलीसिया के अंदर काम करता है, ये कुदरत को देखेंगे। लिहाजा खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह ने मरियम मार्था को लिया, लोगों को लिया, और कहा कब्र पर, लाजर की कब्र पर चले गए, और वहां पर उनको क्या कहा बला, उनको कहा पत्थर को हटाओ कब्र से, पत्थर को बोलिए कब्र से हटा दो। अब देखिए लोग पत्थरों को उठा नहीं रहे। अब देखिए खुदा पत्थरों को उठाने के लिए नहीं आया, बल्कि लिखा है कि कब्रों के अंदर से मुर्दों को जिंदा करने के लिए आया। हालेलुया। आज खुदा की कुदरत के जरिए से, कादिर मुद्दत की ब्लेसिंग के जरिए से पत्थरों को उठाने की जरूरत नहीं है। और ये पत्थर क्या चीज है? यीशु मसीह की कब्र पर जो पत्थर था, जिसने इतने बड़े काम किए, पत्थर नहीं उठा सकता था। ओ भाई पत्थर उठाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जिंदगियों को जिंदा करने की जरूरत है, मुर्दा लोगों को जिंदा करने की जरूरत है। ये क्राइस्ट ने करके दिखाया। हालेलुया। तो कहा पत्थर उठाओ, नहीं हटाया किसी ने, फिर हटा दिया। लिहाजा यीशु मसीह ने लिखा है लाजर को कहा लाजर बाहर आ, तो लिखा है वो कफन समेत बाहर आ गया। आइए खुदावंद के जलाल की जरूरत, ये दीदी, ये ऑलमाइटी गॉड की पहचान, खुदा कादिर की कुदरत, उसकी अलूहियत मसीह के अंदर सुकूनत करती है। आप देख सकते हैं बाइबल के अंदर बेशुमार एलिया एलीशा ने भी मुर्दे जिंदा किए हैं, खुदावंद की कलाम में लिखी। लिहाजा लिखा है कि नए नामा के अंदर पतरस ने लिखा है, एक तबीता एक लड़की थी, उससे कहा उठ बेटी, और लिखा वो जिंदा हो गई। हालेलुया। फिर लिखा पौलुस रसूल, ये खुदा की खुदाई लिखे खुदा के अंदर, फिर क्राइस्ट के अंदर, और फिर लिखा है उसके बाद कलीसिया के अंदर ये जाहिर होती है, उनके जरिए से काम करती है खुदा की कुदरत, ऑलमाइटी गॉड की ब्लेसिंग ये काम करती है जिंदगियों के अंदर। और फिर लिखा पौलुस रसूल एक बाला खाना के अंदर दुआ कर रहा था, रात का पहर था, और लिखा एक बंदा वहां से गैलरी से गिरा और नीचे गिर गया, और वो उसकी डेथ ही हो गई। और लिखा कि पौलुस रसूल ने उसको छाती पर से लगाया और वो जिंदा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। भाई कहीं कहीं डर के ना जाएगा, जोर से बोलो हालेलुया। लिहाजा ये ऑलमाइटी गॉड खुदाए कादिर की ब्लेसिंग है, जैसे इब्राहिम पर की, फिर लिखा है कि याकूब पर, फिर यूसुफ पर, इसी तरह क्राइस्ट के ऊपर, और उसके बाद लिखा तमाम कलीसिया के लोगों की जिंदगी में नजर आनी चाहिए। हालेलुया। अगर कोई ऐसी कंडीशन है तो आप
खुदा कादर की ब्लेसिंग को हासिल कर सकते हैं। रोया को लीजिए, खुदा के लिए काम कीजिए, मुर्दों को जिंदा कीजिए। और जरूरी नहीं कि जो मुर्दा लोग हैं, जैसे कोई बंदा मर गया है उसे जिंदा कर दें, भाई उनको भी जिंदा कीजिए। आज का खादम तो मैं समझता हूँ कि वो खिदमत ही नहीं करता, बहुत पीछे है और खिदमत के लिए आता ही नहीं, उसके काम ही खत्म होते तो उसने खिदमत क्या करनी है, बड़ी मार खाएगा खुदा से, मैं आपको बता दूं। लिहाजा जो खिदमत दी गई उस पर काम कीजिए। हम कॉल भी करते, बुलाते भी हैं, मगर वो सुस्ती का ही कर जाते हैं। मगर कोशिश कीजिए कि खुदा का काम कीजिए। खुदा ने ऑलमाइटी गॉड की ब्लेसिंग मुझे और आपको दी है ताकि खिदमत कर सके, कुदरत के काम कर सके, खुदा की अलूहियत, खुदा की कुदरत को देख सके, अपनी जिंदगी से जाहिर कर सके। कोई घर में बैठा रहे, कोई अपने कामों में मसरूफ रहे, भाई खुदावंद का काम भी कीजिए, दूसरे काम भी कीजिए। सारे लोग कर रहे हैं, खुदा का काम कीजिए, क्योंकि ये ब्लेसिंग को लीजिए खुदाए ऑलमाइटी गॉड की, यानी खुदाए कादर की ब्लेसिंग को इसे रिसीव कीजिए, विजन लीजिए और खुदा का काम कीजिए। और मैं बता रहा था कि अगर कोई मर गया बंदा उसे जिंदा करना कर सकते हैं, मुर्दा जिंदा होते हैं, खुदा ने यीशु मसीह ने किया और भी कर रहे हैं कुदरत के ज़रिए से। लिहाजा असल में मुर्दे जो हैं वो हैं जो खुदा से दूर हैं। और भाइयों, ये मुर्दे जिंदा कर देंगे तो फिर वो मर जाएंगे। लाजर को जिंदा किया गया, फिर मर गया, उसे 10 दफा भी कोई जिंदा करेगा ना, वो मर जाएगा। अगर आपने किसी जिस्मानी शख्स को, दुनियादार शख्स को मसीह के पास ले आया तो वो हमेशा जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। भाई ऐसे मुर्दों को जिंदा करने की जरूरत है। उसे मसीह के पास ले आए, वो हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा, मौत उससे जाती रहेगी। हालेलुया। लिहाजा दुनिया को जिंदा कीजिए। जो खुदा से दूर लोग हैं, जो दुनिया की एडिटी पर ईमान रखते हैं, मुर्दा लोग हैं। लिहाजा मैंने बताया दुनिया के लोग तो सांपों, बिच्छुओं की, कीड़ों मकोड़ों की प्रशंस करते, चांद सूरज तारों की प्रशंस करते, और फिर इंडिया के अंदर तो बहुत बुत प्रस्ती की जाती है और धरती माता की प्रशंस। वो नमरूद के दौर के अंदर धरती की प्रशंस की जाती है, धरती कहते हैं जमीन की प्रशंस। जैसे इंडिया के अंदर वो सॉन्ग भी लगाते हैं, गाते हैं धरती माता की भी, जमीन की खातर वो क्या करते हैं, मौत द्वारा कर देते, मर जाते हैं अपनी जमीन की खातर। ये सब आइडल वर्शिप, ये सब नमरूद का बनाया हुआ मजहब है। और इंडिया के अंदर आपको बहुत ये एडिटी मिलेगी, बुत प्रस्ती, धरती की, जमीन की वो इबादत करते हैं, जमीन की खातर मर जाते हैं और उसको ऐसे सुमारते हैं, ऐसे तरीके से वर्शिप करते हैं, सर झुकाते हैं जमीन पर, इनसे सजदा करते हैं। ये सब बुत प्रस्ती है। लिहाजा ये नमरूद ने मजहब बनाया था, झूठी तालीम, झूठा मजहब बनाया, और आज तक कलीसियों के अंदर उसका असर नजर आएगा। ये हमारा बरसलीर का इलाका है, लिहाजा इंडिया पाकिस्तान इकट्ठे थे, इसलिए ये तस्वीरें काम कर रही हैं। लिहाजा हम इस भेद को जान जाएं, और अगर भाइयों खुदा को जानना है तो हमारे पास आए, कोई खुदा की कुदरत को अगर जानना चाहता है, भेदों को जानना चाहता है, आपको खुदा ने इल्म दिया है, ये भेद दिया है कि खुदा की खुदाई को जाहिर करे, ऑलमाइटी गॉड की ब्लेसिंग को जाहिर करे, लोगों तक लेकर चले जाए, खुदा की खुदाई के तरीके से कुदरत को बयान कर सके। लिहाजा ऑलमाइटी की ब्लेसिंग विजन लेकर हमें खुदावंद की खिदमत करनी, लोगों को बताना है कि एक ही खुदा है, वो आसमानी खुदा है, वो यहोवा खुदा है, वो कुदरत रखता है, वही एडिटी है, वो जिंदा है। हालेलुया। अनसीन नजर नहीं आता मगर कुदरत रखता, पावर रखता, कायनात को बनाने वाला है, पावरफुल कुदरत वाला ऑलमाइटी गॉड है, कादिर मुतलक खुदा है। वो हमें क्या करता है, हमारी नस्लों को बरकत देता है। हालेलुया। लिहाजा इसलिए खुदा का बंदा दाऊद क्या कहता है, वो भेदों को जान जाता है। वो तो कहता है कि खुदा तूने मुझे बरकतें दी हैं। वो कहता है कि तू क्या करता है, सुनिए गौर से, आखिरी जुमला सुनिए। खुदा का बंदा दाऊद ज़बूरों के अंदर कहता है कि खुदा बंदा तूने मुझे बरकत दी है, और फिर वो कहता है कि तूने मुझे औलाद जैसी औलाद की बरकत दी है, और फिर वो कहता है कि ए खुदा तेरे चश्मे जारी हो जाए, और तू क्या कर, तू मेरी कौम को, मुझे क्या कर, छातियों की बरकत दे, ब्लेसिंग दे, औलाद दे, नस्लें दे। आमीन। वो नस्लें तेरी वर्शिप करने वाली हो, उन पर भेद खुल जाए। लिहाजा हमें भी खुदा की वर्शिप करनी है, खुदा को इस विजन में लेना है कि खुदा कादर की प्रशंस करनी है। खुदा कादर यानी कुदरत वाला खुदा, ऑलमाइटी गॉड, पावरफुल गॉड,
جو ہر چیز کا علم رکھتا ہے, کائنات کا بنانے والا ہے, ہم سے پیار کرتا ہے, قدرت کے کام ظاہر کرتا ہے, مردہ پارٹس کو زندہ کر دیتا ہے, مردوں کو زندہ کرنے میں قادر کیوں ہے. ابراہیم مردہ سا تھا, اسے زندہ کر دیا گیا. اس طرح میری اور آپ کی زندگی کے اندر بھی اگر کوئی مردگی ہے, ناپاکی ہے, روحانی طور پر مرے ہوئے ہیں, تو پھر خداوند کے حضور میں آ جائے تاکہ آپ کو زندہ کر دیا جائے. ہاللیلویہ.